a fan of the channel, somebody who wanted to be our editor but we did not have an open position for him, made a video for us to watch and react. It's basically a game. हमारे पास एक वीडियो भेजी हमारे भाई ने called Pick Your Top Comedian. So let's go and watch that video and maybe we'll play along. Okay. Let's read through this opening card. Rules: you have to choose best comedian in India according to you. Each comedian is distributed in different league according to me. भाई ने खुद डिसाइड कर लिया कि लीग क्या है, उस हिसाब से हमने चूज कर लिया है. All comedians chosen, those are known to you. Okay, जरूरी नहीं है. You don't know who knows who, but okay, I understand what you're saying. You have to choose according to their level of skills and have to give reason why you choose the following comedian. Okay, that's a rule. हाँ भाई पता है, ज्यादा चूज हो गया. कोई नहीं, read next. For Farooq, not Farooq. Nice. I like this card. There's just too much information on this card, but let's go through it. Challenge: you have to remember your favorite stand-up routine for whom you've chosen the winner. Disclaimer: all comedians are shown or not shown is equally entertaining. If we miss your favorite one, don't worry, वो गंदा ही होगा. So fucked up. No, he probably forgot about it. या अगले वीडियो में, अगले पार्ट में वो comedian भी आ जाएगा. So if you don't see a comedian in this video, leave his name in the description, his or her, and we will add him for the next video. Leagues: bronze, silver, gold, and diamond league. Needs plus expectation. Follow us on Instagram. Yes, please do follow us on Instagram and make sure you hit that subscribe button because मैं कहता नहीं हूँ काफी, पर आज कह रहा हूँ तो प्लीज कर दो. Winner will get Farooq. There's no promises about that. That's not accurate. You cannot make promises like that, bro. Okay, let's go. Let's go. मेरे को समझ नहीं आता होती कैसे इन्फ्लेशन है. जब हमारे स्कूल में हमारी मैडम इन्फ्लेशन के बारे में सिखा रही थी, Yeah, I remember this joke. कल सवाल पूछा कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना पैसा प्रिंट कर लो बहन चोद. तो मैडम ने कहा देखो समय बहन चोद मत बोला करो क्लास में. बहुत अच्छा जोक था, नो डाउट. What a brilliant joke. Simple, easy. और फिर क्लास से निकाल दिया उसने मेरे को. मतलब सीख ही नहीं पाया इन्फ्लेशन को यार. सर आपका क्या नाम? Okay. We're sticking with Samay and that joke, especially that joke. Samay is not my favorite stand-up comedian out there, but that joke is definitely one of my top jokes ever to be said on stage because of the simplicity of it. इतना अच्छा उसने sneak in किया बहनचोद, सुनने भी नहीं दिया किसी को, right? कि हम print क्यों नहीं कर सकते बहनचोद? ऐसे कर दिया. आपने नोट भी नहीं किया. मैंने तो किया था. मैं तो बहुत तेज हर्राफा आदमी हूँ. मुझे तो पता था क्या होने वाला है. But उसने करा भी वही, तो I was very impressed. I was like, yes, good job. Only difference in my head was कि जब उसने बोला ना देखो समय, टीचर ने बोला देखो समय, जब उसने ये लाइन बोली ना, मुझे पता था क्या होने वाला आगे. पर मेरे दिमाग में लाइन इस तरह जाने वाली थी कि देखो समय, क्लास में ना भैंचोद नहीं बोला करो, या क्लास में ना भैंचोद नहीं बोला करो. पर इसने स्टार्ट ही भैंचोद से किया. देखो समय, भैंचोद नहीं बोला करो क्लास में. That was more impactful. छोटी सी चीज है, पर स्टैंड अप कॉमेडी में यही मैटर करता है. डिलीवरी कहाँ पे जाके लगती है वो चीज. हाँ, मैंने कभी की नहीं है, पर मैंने देखी बहुत है, इतना मुझे अंदाजा है. ओके, गौरव कपूर नेक्स्ट, अनदर ब्रिलियंट कॉमेडियन. जितने होते हैं हमें क्या पता कितने होते हैं, हमने थोड़ा देखे हैं आपके. गोटे. But let's assume Ankit you have two. Hey, this is another brilliant joke. For common understanding. All time brilliance. Ankit has two testicles. और अंकित मान लो आपको आज पता चले कि हम सबके 3 हैं. तो आपकी दुनिया बिखर नहीं जाएगी अचानक से. दुनिया बिगड़ गई ना. बहुत आला. Another brilliant joke bro. बहुत अच्छा जोक था वो. पूरा सेटअप अच्छा था. उसके आगे भी जो जोक था वो बहुत अच्छा जोक था, मुझे याद है. I think I'm gonna play by my own rules because मुझे honestly speaking मुझे रूल्स समझ नहीं आए ब्रो तुम्हारे. तो मैं अपने रूल से खेलूंगा and I pick Samay's joke. I still stick with Samay because it was simple man. It was easy. आसान था. कभी कभार आसान चीज और अगर स्मार्ट हो साथ में तो उसको जीनियस समझ लेते हो आप. समझ लो. तो मेरी नजर में वो जीनियस जोक था बहुत. हालांकि ये गोटे वाला जोक हल्का नहीं था ब्रो. 19-20 की बात है. 19-20 की बात. ओके नेक्स्ट अभिषेक. थोड़े दिन चिल मारते हैं अपना आराम से. तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें नौकरी चलेगी. मैं फर्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी. नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे. किए ना सेविंग्स मेरे लिए. तुमने ऐसे टेंशन में तो कहना सुनो तुम ना शादी कर लो. मैं मुझे नहीं करनी. कर लो. मैं समझ नहीं आता नहीं करनी. कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, एक बार देख लो बस. दलाल जैसी बातें नहीं.
एक तो इतने सारे Okay, सुंदर लोग एक साथ देख I still stick with Samay because this was joke and routine was pretty special. मुझे याद आ गया जब मैंने इसमें, मुझे अच्छी तरह याद है इसके अभिषेक के इस रूटीन में मैंने ये भी कहा था बाद में कि ये the way he talks to his parents and the way he shows us कि मैं इस तरह से बात करता हूँ, that was pretty cool and that was new for me to see that, so I was like very impressed by that. Okay, next up Zakir Khan, OG routine bro. दिवास था ये क्या था? This is what made him famous. This is what made my channel famous too, honestly speaking. एक तो इतने सारे सुंदर लोग एक साथ देख के मेरी फट रही है Funny to this day. और आगे तो अमीर भी है आगे तो अमीर भी है. अपन ना बॉय स्कूल के पढ़े हुए हैं, ठीक है कोई बॉय स्कूल का पढ़ा हुआ है यहाँ पे? बाकी जनता ये लौंडे देख लो और हम बता देते हैं तुमको कि लड़कियों में खुशबू होती है एक, जो सिर्फ हमें पता है. तो यार अपना फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम है, मतलब अपना फीमेल इंटरेक्शन इतना कम है कि अपने घर में कंगा है, कंगी भी नहीं है. बहुत आला यार. इंदौर से अपन 2009 में क्या निकल के insight दिल्ली है. रहते थे, ठीक है, अभी 2015 में यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है. तो एक लड़की पर बताऊँ दिल्ली में मिली मुझे, ठीक है. अब वो अरे वो लड़कियां होती है ना दिल्ली की टिपिकल, वो जो मतलब अरे अब वो होती है ना वो जो बार काउंटर से ड्रिंक उठा के कहती है वो. तो अभी तो मैं कॉमेडी करने लगा हूं तो मेरे को स्ट्रेंजर लोगों से इतनी कुछ. ब्रो ये रूटीन वुड ऑलवेज बी OG. ये रूटीन जो था ना इसका जाकिर का, इस रूटीन को बीट नहीं कर सकते आप. पूरा स्टैंड अप रूटीन, ये कॉमेडियंस भी हंस रहे थे और आम आवाम भी हंस रही थी. इतना ब्रिलियंट रूटीन था ये. आई थिंक आई एम गोना पिक दिस. ऑल्दो जोक इतना खास नहीं था. मैन आई एम कंफ्यूजिंग माई सेल्फ नाउ, क्योंकि अगर इस लॉजिक से तो मुझे गौरव का भी पिक करना चाहिए था ओवर समय. But for some reason, Samay feels funnier to me. But then again, he's not the best stand-up comedian out there. This game is tough, bro. This game is not easy. I think I'm gonna pick this because of the OG sense, OG nature of this stand-up show. ये जो show था, ये इसका OG nature, ये outdoor था. और दूसरी बात ये यार, Zakir himself is just such on an elite level. ये बंदा real life में कैसा होगा मुझे नहीं पता. मैं मिला नहीं हूँ real life में. मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी मिलने की, मैंने मिस कर दी. जब यहाँ सैन होजे में गिग हुआ था जाकिर खान का, आई कुड हैव गॉन देयर बट आई मिस्ड आउट बिकॉज मैं LA मूव हो चुका था, तो मैं दूर था बहुत. बट ये बंदा स्टेज पे ना कभी झूठ नहीं बोलता है. झूठ से मुराद ये नहीं कि झूठ नहीं बोलता है मतलब कहानी नहीं सुनाता, स्टोरी सुनाता होगा. ये अपनी पर्सनैलिटी फेक नहीं करता कभी स्टेज पे जब खड़ा होता है अगला. एंड दैट्स गोल्डन मैन. दैट्स गोना मेक हिम लिव फॉरएवर. ये जो आदतें होती है ना आपकी, स्टेज पे खड़े होकर सच बोलना, कैमरे में बैठ के सच बोलना, अपने आप में सच रहना, अपनी बात कहना जो भी दिल में हो, चाहे अगले को बुरी लगे अच्छी लगे, वो चीज आपको हमेशा जारी रखेगी इस दुनिया में. आपका नाम जाता रहेगा आपकी मौत के बाद भी. इमॉर्टल जिसे कहते हैं ना, इमॉर्टैलिटी. सो आई वुड पिक जाकिर राइट नाउ फॉर आई थिंक आई एम ऑन जाकिर नाउ. तो अभी तो मैं कॉमेडी करने लगा हूं तो मेरे को स्ट्रेंजर लोगों से इतनी कोई खास दिक्कत है नहीं. ब्रिलियंट. बट मेरे को वो लोग बहुत बुरे लगते थे पहले, जो तुमसे डायरेक्ट आके बातें नहीं करने लगते. वो अंकल लोग तुम्हें जानना पहचान डायरेक्ट आके पूछते हैं भैया आप कहाँ. सो राइट एज ऑफ नाउ मेरी नजर में जोक अभी भी समय वाला टॉप पे है, पर कॉमेडियन वाइज इस लिस्ट में से जाकिर इज ऑन टॉप नाउ. आप बोलोगे पटना से, वहां पटना के निकल जाते हैं. मैंने सारे शहर बोल के देख चुका हूँ भाई. वो एक मुझसे पूछता भैया आप कहाँ से, मैंने कहा मैं MP से हूँ. तो हम भी MP से. तो MP में कहाँ से? मैंने कहा भोपाल से. उन्होंने गले में हाथ डाल लिया. कहला भोपाल में कहाँ से? नहीं. मैंने कहा जहांगीराबाद नहीं बोलूंगा तुम पप्पी लेने वाले. कितना कराची वाला है यार, बहुत कराची का. इस चूतिए को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि एक शहर में 2 लोग रह सकते हैं. मैं चले जाता हूँ यार, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, बंदा आके पूछता भैया आप कहाँ से. मैंने कहा सुन कराची से हूँ. तो मेरे पास आया, गले मिला और रोने लगा. भाईजान बस मकसद नहीं भूलना. ओके, जोक में आई थिंक समय के जोक को इस जोक ने रिप्लेस कर दिया, बिकॉज जस्ट यू नो कितना ब्रिलियंट जोक मारा इसने. जिस तरह का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चल रहा है, जिस तरह के साथ इसके साथ बातें होती होंगी वहां पे इंडिया में, जो थॉट प्रोसेस था ना इस जोक के पीछे की, बस भाई मकसद नहीं भूलना. हमें पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की इसमें इसने मारी है, बेसिकली रोस्ट है ये थोड़ा सा, बट ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट. बहुत अच्छा जोक था और इसकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी. इसमें बोलने में एकदम ऐसा लग रहा है कराची का लौंडा है, टिपिकल कराची के लौंडे ऐसे बात करते हैं, आप गले लग जाओगे, आप पप्पी कर लोगे आप, ये वाला सीन था. तो कराची बिलीवेबल भी बहुत था जब इसने बोला. सो आई थिंक स्टिल जाकिर इज माय टॉप कॉमेडियन फ्रॉम दिस लिस्ट एंड द जोक लिस्ट हैज बीन टॉप्ड बाय हसीब खान्स मकसद नहीं भूलना जोक. मकसद नहीं भूलना इज वायरल, एवरीबॉडी, इसका करियर बन गया उस जोक की वजह से. सो आई कैंट इग्नोर दैट जोक. ऑलराइट, नेक्स्ट इज बस्सी. बाहर आया ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था. मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के. तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा. क्यों? मैं कहा अरे क्यों? टाइम पास तो मिल गया. आओ इससे बकचोदी की जाए. तो मैंने कहा भाई क्या बेच रहे हो? Did you see what he did? बोला नहीं. मैंने कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो. भाई
तो वो पलटा, कहता तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या हुआ? कह रहा मैं सैम का फादर हूँ। ये तो कोई बेचने की चीज। तो मुझे समझ नहीं आया पर यार कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया। बहुत आरामी है यार ये। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना कुछ खरीदने जा रहा हूँ। Stupid. कह रहा सही से बता तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहाँ पे ना। कुछ समझ ही नहीं आया। रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना। थोड़ी दूर में भागा। कह रहे एक सेकंड तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है। मैं नहीं। मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में और मैं ही सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे। इसके ना बोलने के बावजूद भी बनाओ, शक्ल बनाओ। दिल्ली की ना एक जगह है जो मेरी फेवरेट जगह है। इसके ना बोलने के बावजूद भी अंकल ने बात ही नहीं सुनी ना, कि नहीं बोला इसने, उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया। उन्होंने बोला मुझे पता है तू बस्सी है, तू मुझे पता है तू अनुराग है। अनुराग इज द लीस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन। You know what I mean? Does that make sense? He's like the least comic-y comic. He's not a stand-up comedian even. He's a storyteller at best. हरामी बहुत है, बच्चोदा अल्टीमेट है। अल्टीमेट बच्चोदा जैसे कहते हैं ना, कि रियल लाइफ में इसके साथ बैठने की कंपनी अगर मौका मिले ना, तो अगर कोई मुझे बोले ना कि इंडिया के सारे कॉमेडियंस में से तुम्हें किसी एक के साथ डिनर करने को मिलेगा, किसके साथ बैठ के डिनर करना चाहोगे? डिनर से मुराद खाना पीना पिलाना, हैंग आउट। अनुभव सिंह बस्सी वुड बी माई टॉप चॉइस। उसके बाद मेरी अगली चॉइस होगी कुणाल कामरा, आई थिंक सो। उसके बाद आई वुड पिक, you'll find that out in the next video. But yeah, अनुभव सिंह बस्सी would be my first choice to hang out with. किसका शो अटेंड करना है? I would say जाकिर खान 100%. जाकिर का शो अटेंड करना है मुझे। इसके बाद जो बॉय आया था आकाश गुप्ता का शो अटेंड करना है मुझे। ये शोज के मैं टिकट खरीद के अटेंड करना चाहूंगा, प्रेफरेबली विदाउट बाइंग टिकट। नो, आई एम जस्ट किडिंग। सो या आई थिंक जाकिर एंड मकसद नहीं भूलना, स्टिल ऑन द टॉप। दिल्ली की ना एक जगह है जो मेरी फेवरेट जगह है, ठीक है? उसका नाम है सरोजनी नगर, ठीक है? इट्स अ फ्ली मार्केट, जैसे आपके यहाँ है ना लिंकिंग रोड, हिल रोड। फ्ली मार्केट सब जहाँ वो चल रहा था 150 लूट लो। आराम से यार, आराम से। बहन जी गिर गया क्या? भाव यार की चल चलते फट जाती, क्या गिर गया? पूरा तो बता। नॉटी। ये मार्केट पता है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ना बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। और मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिलता है, आपको कोई आइडिया नहीं है यार। जितने लोगों को लगता है ना कि दिल्ली बहुत रूड है, बहुत अग्रेसिव है, एक बार सरोजनी चाहिए। रैंडम लौंडे, रैंडम आपको इतने प्यार प्यार से बुला रहते हैं। Excuse me, brother t-shirt, excuse me, sister top, excuse me. मेरा question bro, Akash Gupta steals the show. I would put Akash on the, I pick Akash. जाकिर खान को रिप्लेस करते हैं आकाश गुप्ता because of this routine, और हसीब खान के मकसद नहीं भूलना जोक को भी रिप्लेस करते हैं आकाश गुप्ता विद हिज जोक ब्रदर टी-शर्ट। बहुत आला यार, एवरग्रीन। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ। हम सब संडे बाजार जाते हैं, संडे मार्केट, फ्ली मार्केट में जा चुके हैं, सब ने एक्सपीरियंस किया। जैनब मार्केट मुझे कराची की अच्छी तरह आता, डिट्टो माहौल, डिट्टो ब्रदर। डॉल्मेन सेंटर चले जाओ, ब्रदर। तो आकाश गुप्ता टेक्स द केक, टॉप कॉमेडियन इन दिस लिस्ट मेरी नजर में अभी, एंड टॉप जोक फ्रॉम दिस लिस्ट। ओके, अप नेक्स्ट मुनव्वर फारूकी। इट्स जेन्युइन। मेरा क्वेश्चन ये था कि सुसाइड इंसान कौन से सिचुएशन में करता है? हिटलर ने सुसाइड किया था, सुसाइड। और सुसाइड में आपको बताओ 71% इंडिया में सुसाइड का रीजन बता दो, लव लॉस एंड मनी लॉस। डैम, यही रीजन से सुसाइड होता है इंडिया में। आई वाज लाइक हिटलर को इसमें से क्या हुआ होगा? लव मनी लॉस क्या होता? अगर कर्जा होता और हिटलर गुजराती होता तो देश छोड़ देता, सुसाइड नहीं करता। दिस इज अ बिग लव लॉस क्या होता है? खुद बंदी छोड़ के प्रधानमंत्री बन जाता। Savage, bro. Savage. I know crowd हल्का था इसमें, पर जोक बहुत savage था. It doesn't replace because थोड़ा political था, इसलिए I won't give it that edge. I think Akash still stays on my picks. Akash Gupta the comedian and the joke brother. Okay, let's go next. Next up, अपना boy Kunal Kamra. Good enough. Great acting, guys. एक बात बताओ, ये मेरे और अम्मा
बीच में है। यार ये क्या कर रहे हैं? क्या जोक था यार मैं ये, सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? क्या जोक था यार ये, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट यार। अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम। अंबानी के पास वो सब कुछ है जो मेरे को चाहिए, मेट्रो, कपड़ा, पेट्रोल, वाईफाई तो फ्री में दिया है यार। इतना दयालु आदमी देखा है। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। किलर ब्रो, किलर। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन, दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठे हैं। I can't help it, I can't help it. कुणाल ने जीनियस दिखा दिया इस पूरे इस शो में, इस रूटीन में, इस लिस्ट में से based on the jokes that we've seen, this is the best joke and this is the best comedian. आकाश गुप्ता को रिप्लेस करते हैं मेरी नजर में कुणाल कमरा with his fucking evergreen एक ये जोक। तो बनाओ ना पीएम, मेरे और अंबानी के बीच में ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या जोक है यार। और I know his most famous कचरा कारगिल में, but this was genius. अगर वो जोक होता है इस लिस्ट में तो I would have picked that one, right? But ये जोक है इसलिए I think कुणाल कमरा तो बनाओ ना बहुत आला यार। एडिटिंग भी अच्छी थी बीच में, बहुत आला। लेट्स गो। है ना, आप मॉल में जा रहे हो, 3 सिक्योरिटी रिंग होते हैं। पहला होता है वो बैग में बॉम्ब ढूंढ रहा, उसको नहीं मिला, 15 साल से कुछ नहीं मिला, उसका इंसेंटिव रुका हुआ है, वो चिड़चिड़ा हो चुका है। इंसेंटिव, वरुण ग्रोवर का लॉजिक ये इसमें कि बॉम्ब ढूंढने पे इंसेंटिव रखे हुए हैं कि बॉम्ब ढूंढोगे 5000 बोनस मिलेगा। सिक ब्रो। लेकिन आप पूछ नहीं सकते उससे, वो जैसे कई बार नहीं वीकेंड में बहुत भीड़ होती है तो वो ऐसे जल्दी चेक करके, एक बार उसने बाहर से ऐसे देखा, ऐसे दबा के देखा, मैंने धीरे दबाओ फट जाएगा, बोला आप आओ साइड में। क्या बोला आपने? मैंने बोला मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जस्ट बोला नहीं, आप अपने बॉस को बुलाया, मेरी ग्रिलिंग हुई, बोला आपने ऐसे कैसे बोला? नहीं, मैं जनरली एज अ कंसर्न्ड सिटीजन पूछ रहा हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या है। बोला आपको मतलब से क्या करना है? बोला अच्छा सिंपल बताओ मेरे को, आपका स्टेप 2 क्या अगर आपको बॉम्ब मिला था? प्लान क्या है आगे का? डंडा है उस आदमी के हाथ में। Okay, बहुत आला। So I divided all comedians in leagues, gold, silver, bronze, diamond. तो गोल्ड में भाई ने डाला अनुभव सिंह बस्सी, अभिषेक उमनी और मुनव्वर फारूकी को। नॉट बैड, आई वुड अग्री विद दैट कैटेगरी, यस। सिल्वर में हसीब खान, समय रैना, गौरव कपूर, आकाश गुप्ता। आई वुड नॉट, आकाश गुप्ता मेरी नजर में गोल्ड में आना चाहिए। गौरव ऑल्सो आई थिंक बिलोंग्स इन द गोल्ड। ओके, लेट मी रीड दैट वन। ब्रॉन्ज में वरुण ग्रोवर बड़ी सही जगह पे बैठाया है ब्रॉन्ज में। अगेन आई वुड डिसएग्री, पर आपके लिए होगा। फाइंडिंग कुणाल कमरा, ही इज इन बीजेपी's हिट लिस्ट मैच। बहुत आला। तो बॉय के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है थोड़ा सा। एनीवे, आई विल रीअरेंज दिस कार्ड। तो आई थिंक सबसे पहले ब्रॉन्ज की बात करते हैं। ब्रॉन्ज में कौन फिट होता है? ब्रॉन्ज में मेरी नजर में मुनव्वर फिट होता है, समय फिट होता है और हसीब फिट होता है। ठीक है, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन बेस्ड ऑन दिस लिस्ट। उनके ओवरऑल करियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस लिस्ट में हमने जो भी देखे हैं रूटीन्स उसके हिसाब से बोल रहा हूं। थोड़ा बहुत आप करियर को भी ले सकते हैं उसमें, क्योंकि मैं कंसिडर तो कर ही रहा हूं ना एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, इन द बैक ऑफ माय माइंड। ब्रॉन्ज के बाद आता है सिल्वर, और ये इसने इतना ऑफ क्यों बनाया? ब्रॉन्ज पहले होना चाहिए, सिल्वर उसके बाद फिर गोल्ड, फिर डायमंड। ब्रो व्हाट इज गोइंग ऑन विथ योर अरेंजमेंट्स? सिल्वर में आई थिंक अनुभव सिंह बस्सी, वरुण ग्रोवर फॉर श्योर। यार वरुण ग्रोवर वेरी स्मार्ट वैसे, ही इज वेरी ब्रिलियंट, और ये जोक भी हल्का नहीं था ब्रो। ओके, सिल्वर में आई विल ओनली पुट अनुभव सिंह बस्सी, दैट्स इट। मे बी गौरव कपूर, या गोल्ड में आई वुड पुट आकाश गुप्ता, वरुण ग्रोवर एंड अभिषेक ऑफ कोर्स। अगर मैंने रिपीट कर दिया अभिषेक तो माय बैड, बट दैट्स फॉर गोल्ड फॉर मी। तो 3 इन गोल्ड, एंड ऑब्वियसली डायमंड में फिर जाकिर ही रहेगा। जाकिर इज टॉप, एंड कुणाल को भी मैं डायमंड में डालता, बट अगेन ही इज ऑन BJP's हिट लिस्ट। सो या दैट वाज द वीडियो, इट वाज फन। आई वुड हैव लाइक्ड मोर कॉमेडियंस, मे बी वी कैन डू अ पार्ट 2। इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को आपने 10 लाइक्स दिए, 10 लाइक्स, आई विल डू द पार्ट 2. We will make sure we do the part 2. Yeah guys, that's it from me. I love you all. Take care. Shabba khair.